deforming force, यही है ना फर्स्ट पार्ट। पहले हुण तक तुसी जो किया चैप्टर 3 च भी फोर्स आई सी, इफ यू रिमेंबर, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यू अप्लाई फोर्स, इट मूव कर जाता सी, एंड यू यूज द फार्मूला F इज इक्वल टू ma. So this force was used for what purpose? This force was to cause acceleration, or at least to try for acceleration. यही सी ना पर्पस। बट इत्थे करके देखते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ नाउ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, ਇਹਦਾ ਕੀ पर्पस है? टू चेंज द शेप। आ जी फोर्स मैं लगा रहे हैं, एक फोर्स है deforming force. So first part, deforming force is one which when applied changes the shape of the body. Example in this case is the object, say one face is fixed, you apply force, by application of this force the length increases. आज जी फोर्स है ये किस टाइप की फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स, बिकॉज एक एक्सेलेरेशन नहीं है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है? शेप चेंज होती है। 1 2 बी पार्ट है जोड़ा इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। चेक करते हैं यदि है कि नहीं है। ओरिजिनल है, इनू इत्थे तक लैके गए छड़ता फिर वापस आ गई, इत्थे लैके गए छड़ता फिर वापस आ गई। सो प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। वापस ਇਹਦਾ मतलब है अगर इनू तुसी फोर्स नू रिलीव कर दोगे, then this object will have a tendency to regain its original length. इनू की कहते हैं? इलास्टिसिटी। टाइम विद यू इज 3 minutes। ए तो बी पार्ट लिखो, ए एंड बी पार्ट, 3 minutes to write. रजिस्टर लेके आया करो, क्लास वर्क रजिस्टर लेके आया करो, पेज ले लो। एक नंबर का क्वेश्चन आता, डिफॉर्मिंग फोर्स की है 1 नंबर, इलास्टिसिटी की है 1 नंबर। देख लिया? सी पार्ट बोलो की है? सी पार्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। थ्योरेटिकल है,
a body which regains its original configuration. Immediately का मतलब की है टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है. टाइम टेकन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, इंस्टेंटेनियस, theoretically zero. And completely, example, the original length of the wire, steel wire, is 100 centimeter. You apply force, the length increases, delta L, 1 centimeter. Force, remove this force, and again it comes back to original 100 centimeter. That means what? Immediately होना चाहिए, that means time लगना चाहिए, तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए. अगर ये 101.2 हो गया तो फिर उस कैटेगरी च नहीं है. फिर तो पढ़ते हैं, a body which regains its original configuration immediately and completely after the removal of the deforming force is called perfectly elastic body. ਜਿਹੜੇ मटीरियल क्लोज है ਉਹਦੇ, आइडियल तो नहीं है, आइडियल गैस तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती, बट देयर आर गैसेस हाई टैंपरेचर लो डेंसिटी, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਆਈਡੀਅਲ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੁਆਰਟਸ, ਫੋਸਫੋਰ, ਬ੍ਰੋਂਜ਼, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ. ਦੈਨ ਡੀ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ. ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ. ਸਟੈਚੂ ਕਾਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਵੈਕਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਤਾ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ. The even if after removing the force, you remove the force, even then the object remains same. The examples ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਵੈਕਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, JK, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇਚਰ ਹੈ. ਸੋ ਮਡ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ. ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੂ ਇਜ਼ 3 minutes. परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक, लिख लो. यस, हुण इत्थे आ जाओ. जिहड़ा रबर बैंड है वो इलास्टिक है. सुन लो हुण क्वेश्चन, कोई गल इलास्टिक है या प्लास्टिक है. नंबर 1, ना ये परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली प्लास्टिक है. इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव इन कंपैरिजन. दूसरे नाल कंपैरिजन करना पऊगा कि स्टील की एक वायर लई तो दूसरी कड़ी वायर ले ली, रबर की वायर ले ली, दोनों ते फोर्स लगाई, दोनों फोर्स लगाने तो बाद रिमूव करता. जिहड़ा वापस ओरिजिनल के क्लोज आ गया वो ज़्यादा इलास्टिक है. स्टील वायर स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे थोड़ा जिहा इंक्रीज करेगी, छड़ दो इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल आलमोस्ट सेम. बट रबर बैंड तुसीं इस तरह करी जाओ, उस तो बाद उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी. डू इट 10 टाइम्स एंड आफ्टर दैट मेजर इट्स लेंथ, उन्नी ओरिजिनल जिन्नी नहीं होंगी. दैट इज वाई ये तो कॉन्सैप्चुअल क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर. आंसर इज स्टील. ठीक है, 3 minutes to write.
क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? स्ट्रेस। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, स्ट्रेस की है और यूनिट्स की है। फिर सेम एग्जांपल, नो चेंज। अ वायर उत्ते की लगाता फोर्स, जो तुम वेट लगाओगे ये हौली हौली नीचे आएगा। द लेंथ विल इंक्रीज स्लोली, आफ्टर सम टाइम स्टेबल हो जाएगी। वेट एक्ट्स डाउनवर्ड एंड रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट अपवर्ड्स, एंड व्हेन इट इज स्टेबल then restoring force is equal to mg। तो स्ट्रेस एज पर डेफिनेशन अगर गल करांगे, इट इज व्हाट? स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय परपेंडिकुलर एरिया। इस वायर च दिस इज द एरिया। फाइनल कंडीशंस एज शोन इन द डायग्राम, व्हेन इट इज स्टेबल देन Fr इज इक्वल टू mg। कंपटीशन आया हुआ क्वेश्चन, ਉਹਦੇ 'ਚ लिखा होया सी कि ये वायर एक्सटेंड कर रही है, देन इट इज mg बाय wrong choice। mg 100, Fr 10, mg 100, Fr 20, mg 100, Fr 30 करते जाओगे, एक स्टेज आऊगी when Fr becomes numerically equal to mg, उस तो बाद वायर एक्सटेंड नहीं होंगी। सो क्वेश्चन आ गया सी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, तो आंसर की है mg by इज रॉन्ग आंसर। फाइनल जो स्टेबल हो जाऊगा then it is 1। फिर यूनिट्स बोलो की है, SI यूनिट्स, फोर्स का बोलो न्यूटन, डायमेंशंस बोलो फोर्स m1 L1 T-2 ओवर L स्क्वायर। की बन गया है m1 L-1 T-2। लास्ट पार्ट ये स्केलर है या वेक्टर है? बोलो नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। ये है कि टेंसर। टेंसर बारे देखते हैं, टेंसर की चीज हुई पहले कोई चीज आई अपने सिलेबस? बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिलेबस सिर्फ 2 चीज़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा स्ट्रेस। अज अपॉर्चुनिटी है कि आप उन्हें पता लगे कि स्केलर की है तो वेक्टर की है। स्केलर टाइम कितना हो गया, कहना 10 बज गए, अगला क्वेश्चन किधरले पासे बज गए। ये इररिलेवेंट नॉनसेंस क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि वो डायरेक्शनल एस्पेक्ट है ही नहीं। सो वो की है स्केलर है। दूसरा से पूछते बस स्टैंड कितने दूर है, तो क्या 2 किलोमीटर, किधरले पासे, उधरले पासे। द मोमेंट यू यूज दिस स्पेस टू सी डायरेक्शन दे रहे हो तो वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। बट ਇਹਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? अगला क्वेश्चन एक है पेंडिंग, अबाउट विच एक्सिस, डायरेक्शनल मिलता जुलता। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है एक, जो तक वो नहीं पूछोगे आंसर नहीं आऊगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? 1/12 ml स्क्वायर। अबाउट दिस एक्सिस 1/3 ml स्क्वायर। तो डायरेक्शन नाल मिलता जुलता एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो तो बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दसिया जाता। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? टेंसर है। हुण इहदे आ जाओ, बहुत बार देखा है क्रिकेट का बैट जो टुटता है इस तरह ही टुटता है। एग्रीड और नॉट? एम आई राइट? चौक पकड़ लो, एक चौक पकड़ के भी उन्हें ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट करते जाओ तो इतों नहीं टूटेगा, किसी एंगल पे जाएगा। एक रॉड पकड़ लो, उस फोर्स लगा दो F, ये 2 कंपोनेंट बना दो, नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। आ वाला एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया है तो नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइड बाय एरिया तो केड़ा स्ट्रेस है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रेस, तो अगला क्वेश्चन क्या आता है? विच वन, केड़ा स्ट्रेस? परपेंडिकुलर टू द एरिया
और पैरेलल टू द एरिया। दैट इज वाई स्ट्रेस किस कैटेगरी च है? टेंसर। ऑब्जेक्टिव च स्केलर वैक्टर क्वांटिटी के 100 तो ज़्यादा क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटीज हैगी इन्नियां वो ए चॉइस आंसर की ए चॉइस के होगा स्केलर क्वांटिटी, बी चॉइस के होगा वेक्टर, सी के होगा नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। ये जड़ा है ये किहड़ी कैटेगरी च है? नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। एक और भी एग्जाम्पल नाल लिख दिए, बोलो किहड़ी? अनदर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ऐसी एग्जाम्पल दे दो जिहड़ा ईदर स्केलर और वेक्टर होवे। यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वास्ते वेक्टर ते लार्ज वास्ते स्केलर। कोई गल नहीं, इन्ना पार्ट लिखने वास्ते 3 मिनट्स। बी पार्ट की है टाइप्स। बोलो किहड़ी है क्लासिफिकेशन च? बोलो की है? नॉर्मल और टेंजेंशियल, यही है ना। स्ट्रेस ब्रॉड क्लासिफिकेशन फर्स्ट दे विच है नॉर्मल ते टेंजेंशियल। स्ट्रेस पहला एक नॉर्मल, ये 3 पार्ट्स कर देंगे। दूसरा टेंजेंशियल। नॉर्मल का की मतलब है? इट इज नॉर्मल टू द फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, ये 3 पार्ट किए हुए किहड़े किहड़े? पहला बोलो किहड़ा? टेंसाइल। दूसरा कंप्रेसिव। हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक एक गल है, और वॉल्यूमेट्रिक एक गल ही है। ये बाद लिखना टेंसाइल किसी चीज़ को इस तरह खिंचना, ये स्ट्रेस आता है। तो पुराने टाइम सजा देंगे सी तो इस तरह भी करते सी। उपर वाला पार्ट बॉडी का बंधते सरसिया ने एक साइड तो पैर बंधते सी दूसरी साइड, एक पासे हाथी उधर लगाते एक इधर लगाते सी, तोड़ देंगे सी बंदे नूं। ये किहड़ा है?
टेंजाइल। डायग्राम किवें मार्क करा, ओरिजिनल लेंथ, इधर भी फोर्स लगाओ, इधर भी फोर्स लगाओ, एंड यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ। एट प्रेजेंट मटीरियल की गल करोगे, फैन, फैन के उपर एक हुक है, हुक के उपर वेट लगाया हुआ है, वो वेट की कर रहा है, की कोशिश कर रहा है टू इनक्रीज द लेंथ, तो एक स्ट्रेस आया हुआ है, किहड़ा टेंजाइल। कंप्रेसिव लगावांगे नॉर्मली फोर्स, बट इनू छोटा करने की कोशिश करांगे। वो इक्विवेलेंट एक होर तरीका भी हुंदा सी राजा कोल मारन दा, बंदा नीचे हो जांदा सीगा, एलीफेंट दा पैर लिया के उन्होंने कहंदे सी प्रेस कर दे, इत्थे रखदा सीगा हाथी ते दबा दिंदा सी, ये मैथड भी सीगा। किवें करा, फोर्स लगावांगे, फोर्स की की टेंडेंसी है टू डिक्रीज द लेंथ, ये कंप्रेसिव हो गया। नैक्सट किहड़ा है, वॉल्यूमेट्रिक हाइड्रोलिक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਯੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਨੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮॉल ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ नीचे लेके जाओगे प्रेशर विल कीप ऑन इनक्रीजिंग, प्रेशर ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ वॉल्यूम ਘਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ नॉर्मल ही, बट ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ डिफरेंट है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, एक्स्ट्रा प्रेशर ਉਹਦੇ ਨਾਲ वॉल्यूम, ਇਹ ओरिजिनल ਸੀਗਾ, फाइनल ਇੱਥੇ हो गया। मैथमेटिकली लिखते हैं ਅਸੀਂ हमेशा इस तरह ही, इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V, इनिशियल वॉल्यूम 100, फाइनल 100 प्लस -20, ठीक है। जो डेल्टा V नेगेटिव साइन आऊगा बाद बल्क मॉडल तो रीजन पता लगूगा भी ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज मैथ के विच शुरू वाली वैल्यू x ते बाद वाली x प्लस डेल्टा x, चाहे घटे चाहे वधे, अगर ये पॉजिटिव हो जाता वॉल्यूम बढ़ गया, अगर नेगेटिव हो गया मतलब वॉल्यूम घट गया। ये किहड़ा टाइप हो गया, हाइड्रोलिक। नॉर्मल स्ट्रेस पहले पढ़ के देते हैं। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, देन द रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इज टर्म्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ, अब वाला केस चेक करो, then the restoring force set up per unit area of the body is termed as, sorry, then this stress is called tensile. ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲੋ compressive, if there is a decrease in length or at least tendency to decrease, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, compressive। hydraulic, when a solid body, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਹੀਦਾ, solid body ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ solid, ਗੈਸ ਦਾ ਬੈਲੂਨ ਤੇ solid ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੈ, ਫਾਈਨ। solid ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 dimensional ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Body undergoes a change in its geometrical shape and applying on its perpendicular to every point on the surface, then the restoring force set up per unit area is termed as hydraulic stress. The last part ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, tensile। tensile ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, parallel to the surface। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ, parallel to the surface, agreed। पेंट ਅਸੀਂ नवा पेंट करते हैं तो पुराना आके उतारते हैं, तो पुराना आके इस तरह करके उतारते हो, बोलो, और वो इस तरह रब करते हैं, उन्होंने को सैंड पेपर रेगमार होंगे है, दे मूव पैरेलल टू द सरफेस। वन ये उपर अगर एक होर बुक रख दी, एक होर बुक रख दी, बुक्स रखते जाइए तो किहड़ा बनूगा, नॉर्मल। बट जो तुम अलमीरा च रखते हो इस तरह करके तो कई बार इन्होंने ते प्रेशर पैंदा है, टेढ़ियां जी नहीं हो जाए बुक्स, ठीक है। इस तरह करते हैं, वी अप्लाई ए फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स। तो फोर्स लगावांगे तो हुण बोलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ शेप चेंज हुई है, नीचे वाला सरफेस मूव नहीं किया, ऊपर वाला सरफेस शिफ्ट कर गया बिकॉज ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ड्रॉ करांगे, ਇਹਦੇ वास्ते अरेंजमेंट ਜਿਹੜਾ है वो ये वाला है, ओरिजिनल, समझिए ऊपर वाला सरफेस मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, इतने एक बार ड्रॉ कर दूंगा, नीचे वाले डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा। तो जो फोर्स लगाई पैरेलल टू द सरफेस,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡਡ ਏਰੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ that point will remain wherever it is and new position ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਟੈਂਜ਼ਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਤੇ ਇੰਜ ਮਰੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਟੈਂਜ਼ਾਈਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਸੌਰੀ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ वर्ड यूज गलत कर गया लास्ट पार्ट when a restoring force acts tangentially to the surface of the body that means what parallel produces a change in the shape of the body without any change in volume volume च कोई appreciable change नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ one layer of material shifts over other layer ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥਰਡ ਥਰਡ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫੋਰਥ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ shape of the body without any change in volume then the stress set up in the body is termed as tangential stress time with you is 4 minutes note kar lo 4 minutes to write डायग्राम जरूर ड्रॉ करने डायग्राम ड्रॉ करते नाल लिखते रहना टेंजाइल लिखना है तो नाल डायग्राम टेंजाइल का ब्रेन च उस तरह स्टोर होगा लॉजिक कर लिया नोट लॉन्गिट्यूडनल जो टर्म है वो लॉन्गिट्यूडनल का पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हटा दो लॉन्गिट्यूडनल का की मतलब होता है अलोंग द लेंथ
इन्हां च चैक करो किहदे च लेंथ की गल कर रहे हैं इहदे वास्ते। बट इनू लॉन्गीट्यूडनल वर्ड थोड़ा जिहा इस करके घट यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, पहली गल तो डरो ना। बट दो टाइप का होने करके टेंजाइल ते कंप्रैसिव बन गया, है दोनों ही लॉन्गीट्यूडनल, बिकॉज दोनों च लेंथ पे इफेक्ट। ठीक है, हाँ कंप्रैसिव हो सकता है, बट टर्म इस करके घट यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, बट वेन एवर इट इज लॉन्गीट्यूडनल, लॉन्गीट्यूडनल का मतलब लॉन्गीट्यूडनल वेव, पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ते आ जाओ। की है बोलो, फर्स्ट पार्ट की है, बोलो स्ट्रेन। स्ट्रेन दे फिर टाइप दसे हुए तो हम तुहानू इत्थे आसानी नाल पता लग जूगा। स्ट्रेन बोलो पहले, स्ट्रेन की चीज़ है? बोलो यस, चेंज ओरिजिनल चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। ये तो गल समझ नहीं आ रही, क्योंकि कॉन्फिगरेशन तो न्यूमेरिकल वैल्यू किवें पता करांगे? थ्रू एग्जाम्पल पता लग सकता है। ये जो तुसीं टेंजाइल स्ट्रेस अप्लाई किया सी, उदों लेंथ चेंज हुई सी, उन्होंने किस टाइप का स्ट्रेन कहते हैं? फर्स्ट पार्ट बोलो, टाइप्स दे विच सब तो पहले बोलो किहड़ा आया? लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन। ये किवें डिफाइन करोगे तुसीं? इत्थे बोलो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। लेट दिस लेंथ बी एल, एंड थोड़ा मॉडिफाई कर दिंदे आ ताकि दोनों साइड से ना मार्क करना पे जाए डेल्टा एल। ठीक है, पहला पार्ट आ गया। दूसरा की है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 2 ते आ जाओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक एक गल ही है। आ कि देखो है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सेकंड हो गया। थर्ड बोलो की है? शेयरिंग स्ट्रेन। हम ये किवें देखांगे? शेयरिंग स्ट्रेन दे विच उत्थे जो एक्स वाई उत्थे डेल्टा जो भी लिखा है, आ जिहड़ा शिफ्ट किया है एक्स ए वाई, मतलब डेल्टा एक्स, लेट दिस बी डेल्टा एक्स एंड लेट दिस बी वाई, एंगल कितना आ गया? थीटा। अगर बुक वाले केस तुसीं आ पैरेलल फोर्स ही नहीं लगाई तो शिफ्ट ही नहीं करूँगा, तो थीटा कितना आऊगा? 0। जो फोर्स लगाओगे इस तरह करोगे तो यह थीटा भी आऊगा। तो शेयरिंग स्ट्रेन किवें डिफाइन किया गया? शेयरिंग स्ट्रेन इज, थीटा लिखा है फॉर स्मॉल एंगल्स, थीटा ते टेंजेंट थीटा की होंगे? इक्वल होंगे। तो न्यूमेरिकल परपज वास्ते की लिख सकता मैं? डेल्टा एक्स बाय वाई। 3 मिनट्स सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने तो नाल लिख देना। 3 मिनट्स ओनली डायग्राम। पहला डायग्राम ड्रॉ किया डेल्टा एल बाय एल, दूजा डेल्टा वी बाय वी, तीसरा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा डेल्टा एक्स बाय वाई। किहड़े वाला सेम होया बोलो? नहीं नहीं, किहड़ा सेम होया पहले दसो? यस, ये सेम क्यों नहीं है कि मैं तुहानूं दसदा। इहदे विच तुसीं ध्यान नाल देखो, इहदे विच ओरिजिनल सरफेस जिहड़ा नीचे वाला सरफेस है दैट रिमेन्स। अगर बुक पकड़ के इस तरह खिंचोगे, आ वाला केस है। अगर बुक नूं इस तरह नहीं खिंच रहे, नीचे वाला सरफेस एट रेस्ट है, दोनों च फर्क है, इस करके डिफाइन करना पिया। यदि जरूरत पड़ेगी, कॉम्पीटिशन क्वेश्चन है। स्क्रू ड्राइवर, वो प्रॉपर्टी की होनी चाहिए? देखो सुनो भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्क्रू ड्राइवर इस तरह रखा, स्क्रू ड्राइवर घुमाया तुसीं ऐ करके, वो ट्विस्ट आता है। जिस ट्विस्ट की स्ट्रेंथ होवे उहदे च ईटा शेयरिंग स्ट्रेस बीयर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए है। नीचे तुसीं देखिया ट्रक के नीचे एक रॉड घूम रही होंगी है, देखिया वो इंजन तो पावर लेंदी है तो व्हील तक उन्होंने घुमाउंदी है। तो आह वाला केस है, एक साइड तो पकड़ के दूजे पासे इस चीज़ को घुमाना है। जो इस तरह घुमावांगे असीं तो ये ट्विस्ट वाली स्ट्रेंथ चाहिए है। तो मटीरियल बनाया ही इस तरह जाता है सो दैट इट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ
ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्वेश्चन नंबर 5 च गल करांगे ये थ्रू एप्लीकेशन पूछणगे कंपीटीशन च वो कहते थेरी जी मर्जी देख लो सारी बुक खोल लो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होंदा जो तक समझ नहीं आती यस डायमेंशनस यदि बोलो गल लेंथ पे लेंथ डायमेंशनलैस यूनिटलैस डायमेंशनलैस यदि भी गल कर लो यूनिटलैस है एंड डायमेंशनलैस इस पॉइंट पे जो टेंजेंट थीटा की गल करांगे यूनिटलैस डायमेंशनलैस है बट थीटा रेडियन है इस करके इस टेंजेंट थीटा ही कहने ठीक है थीटा भी कह दो कोई गल नहीं बिकॉज स्मॉल है तो डायग्राम ड्रॉ करने वास्ते टाइम देता है बस फोर नहीं 5 देखना क्वेश्चन कर ले कंप्लीट डायग्राम में ड्रॉ करने चाहिए था बस सेम 3 एक्सपेरिमेंट है नो चेंज ये बेस से 3 पैरामीटर डिफाइन करूंगा पहला की है क्वेश्चन नंबर 5 च लिखा है ए पार्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्वेश्चन नंबर 5 दा ए पार्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो ई किहदे कोल आ गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ਹੁਣ वापस फिर ये तो एक्सपेरिमेंट करने पैणगे स्ट्रेस भी कई तरह का है तो स्ट्रेन भी कई तरह का है 3 तरह के बोलो कि चीज़ा हैं पहला बोलो कि बी पार्ट पहला बोलो बी पार्ट पढ़ के दसो यंग्स मॉडुलस वाई दूसरा तीसरा कंप्रेसिबिलिटी नहीं नेक्स्ट जो नेक्स्ट पेज पे है कंप्रेसिबिलिटी नहीं है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो अगर यदि गल करते हैं ए पार्ट फस्ट ए तुसी नोट चो एज इट इज नोट कर लेना कि कोई इशू नहीं है बी पार्ट की गल करते हैं बी पार्ट दे विच फस्ट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू ये फोर्स लगाई आ एरिया आया स्ट्रेस एफ बाय ए डिवाइड बाय स्ट्रेन केड़ा स्ट्रेस ते केड़ा स्ट्रेन आ नॉर्मल स्ट्रेस है तो स्ट्रेन किहड़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस पता लग गया दूसरे ते आ जाओ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू ये तो तुसी एक्स्ट्रा की अप्लाई किया डेल्टा पी तब स्ट्रेस किहड़ा प्रेशर वाला नॉर्मल है स्ट्रेस बट उन्होंने कहांगे कि चेंज इन प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया तो इस केस असी जो एक बैलून पकड़ के इन्हों जो प्रेस किया तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया ठीक है एक्स्ट्रा प्रेशर नाल की होया वॉल्यूम चेंज होंदा है तो ये एक स्ट्रेस लगाया एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया उन्होंने की लिखता डेल्टा पी बिकॉज ऑफ दैट वो की होया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम साइन नेगेटिव क्यों लगाया ये जो प्रेशर इनक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा इन ऑर्डर टू कीप दिस पैरामीटर बल्क मॉडुलस पॉजिटिव असी ये करता दूसरा आ गया तीसरा बोलो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उन्होंने ईटा ना लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू फिर वापस ऊपर स्ट्रेस केड़ा टेंजेंशियल स्ट्रेस क्योंकि जी फोर्स तुम लगाने हो दैट यू अप्लाई पैरेलल टू द सरफेस वो की बनूगा एफ टी बाय ए टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन अगर लिखना है तो ये भी लिखा हुआ है कि यह डेल्टा एक्स बाय वाई वो नोट्स के करैक्शन कर लेना किते किते डेल्टा एन लिखा गया गलती नाल ठीक है ना कुछ एक पॉइंट से
डेल्टा एन लिखा गया। किन्ने तरह के हो गए ये 3 टाइप्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 ਨੂੰ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करा क्योंकि 7 एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन फिर क्यों किए है 1 2 3 4 भी वो इनू एक्सप्लेन करने वास्ते सीगे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्ट्रेस यूज करना सी, स्ट्रेन यूज करना सी। पहला स्ट्रेस एक्सप्लेन किए, स्ट्रेन एक्सप्लेन किए, तो क्वेश्चन नंबर 5 ਨੂੰ सॉल्व करने वास्ते किया सी। टाइम विद यू इज 5 मिनट्स। अब तीनों लिखो। पहला यंग्स मॉडुलस डायग्राम एक्सप्रेशन, फिर बल्क मॉडुलस डायग्राम एक्सप्रेशन। लिखने तो पहले इंपॉर्टेंस दस देना। चैप्टर जो न्यूमेरिकल बुक देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर जो न्यूमेरिकल है टाइप ए च यंग्स मॉडुलस का न्यूमेरिकल है 6 सारे न्यूमेरिकल ये चैक करने तुम आ गया कि नहीं आ गया। फिर टाइप बी च 3 न्यूमेरिकल है बल्क मॉडुलस ये चैक करने आ गया कि नहीं आ गया। सी दे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हम बनाया वो 2 न्यूमेरिकल है वो भी आ फार्मूले की एप्लीकेशन पता करके डायग्राम ड्रॉ करके तुम आती है कि नहीं आती। तो एक टाइप होर है 2 टाइप्स है रैदर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिमें ये स्प्रिंग की तरह एनर्जी स्टोर हो जाती है वो गल करा। तो जो बाकी रह गया वो कल डिस्कस करा नोट कर लो। पहला ट्राई किमें करा 1 to 11 जिन्होंने को टाइम घट है ईवन क्वेश्चनस पहला कर लें 2 4 6 8 10 इन्ने नाल सारा फंडा क्लीयर हो जाएगा। जिन्होंने को टाइम है वो बाकी भी कर लेने क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे आएंगे। ठीक है करो नोट करो शाबाश।